Namaskar friends, welcome to Headlines of the Day. In this video, we are going to discuss major headlines of Indian Express. तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी पहली हेडलाइन से, जो की है सब्जेक्ट टू कंस्पिरेटोरियल स्क्रूटनी फ्रॉम डे आई जॉइंड सफर्ड इन साइलेंस सीजीआई एट फेयरवेल। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजीआई और जो अदर जजेस हैं of the Supreme Court, they are appointed by the President under Clause 2 of the Article 124 of the Indian Constitution, right? Our next important headline is India needs $10 trillion investment from now. Report available है पेज नंबर 8 पे, रिलेटेड पेपर 3 से, एनवायरमेंट सेक्शन से। इस आर्टिकल में क्या जानना है? What are the findings and suggestions of the Getting India to Net Zero report? According to the report, investment required will be $13.5 trillion if the target is to be met by 2050, and it also says that achieving net zero by 2070 would boost annual GDP by up to 4.7% by 2036 and create as many as 15 million new jobs by 2047, right? Our next important headline is A few highs and belied hope, अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और रिलेटेड पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इस आर्टिकल में हमें जानना है व्हाट आर द अचीवमेंट्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ जस्टिस रमन्ना's tenure। तो जस्टिस रमन्ना रिसेंटली रिटायर हुए हैं and it is stated that he took over the reins of the Supreme Court in difficult times when the fundamental rights and civil लिबर्टीज ऑफ द सिटीजंस वे आर अंडर थ्रेट एज नेवर बिफोर। अगर हम कुछ अचीवमेंट्स देखें तो बेंच हेडेड बाय जस्टिस रमन्ना पास सम लॉडेबल एंड प्रो सिटीजन ऑर्डर्स। कौन से थे वो? लाइक पेगासस स्पाईवेयर केस। और जस्टिस रमन्ना's बेंच ऑल्सो एग्री टू रिविजिट द ब्रिटिश एरा सेडिशन लॉ एज एम्बॉडीड इन सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इनके जो टेन्योर था, इट हैज इट्स डिसअपॉइंटमेंट्स ऑल्सो। कौन सी थी वो? द फोरमोस्ट अमंग दीज वॉज हीज फेलियर टू लिस्ट केसेस ऑफ immense national and constitutional importance. कौन से थे? Such as challenges to abrogation of Article 370 of the Constitution, Citizenship Amendment Act and Electoral Bond Scheme. Our next important headline is RBI's Green Challenge. Available है पेज नंबर 10 पे और रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इंक्लूजन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी रिस्पॉन्स फंक्शन, इश्यूज लिंक्ड एंड व्हाट लाइज अहेड। रिसेंटली इट हैज बीन स्टेटेड दैट इंक्लूजन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी इज क्रूशियल फॉर strong economy. It has been argued that climate change is a significant threat to financial stability and central bank that does not address climate risk is failing to do its job. Central bank जो हैं, they can guide the flow of finance by restricting flow of credit to fossil fuel dependent sectors. In this context, RBI joined the network for greening financial system. ये क्या है? ये voluntary group of 116 बैंकों का है। ये voluntary group of 116 central banks that promotes the exchange of best practices on green finance. और अभी जुलाई में भी RBI released a discussion paper that covers the issue of climate risk and sustainable finance. Our next important headline is Paddy dwarfing Punjab agri vastly decodes mystery blame virus first reported in China. Available है पेज नंबर 12 पे और रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी से। इस आर्टिकल में हमें जानना है, अब इकोनॉमी, पहली बात तो हम जानना है कि इकोनॉमी में क्यों है लिस्टेड, क्योंकि इसी में सबसेक्शन है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स, इसलिए हमने इसको इकोनॉमी में लिस्ट किया है। इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना? साउदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक्ट ड्वार्फ वायरस। ठीक, तो अभी ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि it has been found first time in Punjab and it is named after southern China where it was first reported in 2001. ठीक, our next important headline is Supreme Court relaxes iron ore mining limit for Bellary and 2 other districts. तो कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं? एक है चित्रदुर्ग और एक है तुमाकुरु। ये कहाँ पे हैं? ये कर्नाटका में है। ठीक, ये आर्टिकल कहाँ अवेलेबल है? पेज 12 पे अवेलेबल है ये आर्टिकल और रिलेटेड है पेपर 1 ज्योग्राफी से। इस आर्टिकल में हमें जानना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर माइनिंग इन इंडिया। तो ये कहाँ अकर होती हैं? दे अकर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोल फील्ड्स इन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन ऑफ द कंट्री। आयरन ओर जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर ये पाए जाते हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट बाय मिस्टेक। अवेलेबल है पेज नंबर 13 पे और रिलेटेड है पेपर 3
एनवायरमेंट से। इस आर्टिकल में हमें जानना है लॉज गवर्निंग फॉरेस्ट इन इंडिया। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो कि नोटिफाइड है अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की। वो कौन सी हैं 2 टाइप की फॉरेस्ट? एक तो रिजर्व फॉरेस्ट है जहां पे नो राइट्स आर अलाउड अनलेस स्पेसिफाइड, और एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वेयर नो राइट्स आर बैरिड अनलेस स्पेसिफाइड। अगर जो अदर फॉरेस्ट हैं जैसे कि नगर पालिका और विलेज के, तो दे आर मैनेज्ड बाय स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स। जो फॉरेस्ट एक्ट 1980 है, इट अप्लाइज टू ऑल काइंड ऑफ फॉरेस्ट वेदर अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एंड इट रिक्वायर्स स्टैट्यूटरी क्लियरेंस बिफोर फॉरेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस सच एज इंडस्ट्री, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन। इन 1976 फॉरेस्ट वेयर इंक्लूडेड लिस्ट 3 जो कि कॉन्करेंट लिस्ट है अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज व्हाई नेपाल हैज पुट ऑन होल्ड गोरखा रिक्रूटमेंट अंडर इंडियाज अग्निपथ स्कीम। अवेलेबल है पेज नंबर 13 पे, और रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट इन्वॉल्व है, और पेपर 3 से भी ये लिंक कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि डिफेंस सेक्शन से है ये। ठीक, तो इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जाना? व्हाई डज द नेपाल गवर्नमेंट हैव रिजर्वेशंस अबाउट इंडियाज अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट इन आर्म फोर्सेस, एंड व्हाट अबाउट द ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड यूके। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि नेपाल हैज पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट रैलीज विच वेयर टू बी हेल्ड इन दैट कंट्री टू रिक्रूट गोरखा सोल्जर्स फॉर द इंडियन आर्मी अंडर द अग्निपथ स्कीम। अब नेपाल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा नेपाल गवर्नमेंट का कहना है कि जो न्यू फॉर्म ऑफ एंट्री है ये कवर नहीं है किसमें? ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट में, जो कि साइन हुआ था नेपाल, इंडिया और यूके के बीच में 1947। अगर हम ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट की बात करें तो किससे रिलेटेड है? इट इज रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द गोरखा सोल्जर्स हु वेर सर्विंग इन इंडियन आर्मी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखा सोल्जर्स इन द इंडियन आर्मी एंड फॉर देयर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड पेंशंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।